गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। द वर्ड प्रोटीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। All proteins are polymer of alpha amino acids. This is very important thing. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी एमिनो एसिड हैं जो भी प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बहुलक होते हैं? अल्फ़ा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में भी कौन से एमिनो एसिड के? अल्फ़ा एमिनो एसिड्स। ये ध्यान रख लेना। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड्स, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage. Chemically, peptide linkage is amide formed between COOH and NH2 group. मीन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन्स के बारे में वो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन्स है वो ओनली अल्फ़ा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर हैं, और ये जो अल्फ़ा एमिनो एसिड्स हैं वो आपस में एक पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से। और ये जो पेप्टाइड लिंकेज है वो एक तरह से एमाइड है। ये वाला पेप्टाइड लिंकेज होता है CONH, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो पेप्टाइड लिंकेज हैं वो एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड के NH2 की रिएक्शन से बनता है। तो बेसिकली समझ में आ गया कि प्रोटीन्स होते क्या हैं। आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला एमिनो एसिड, इसका COOH और इसका NH2 ग्रुप, इन दोनों में से H2 निकल गया और एक पेप्टाइड लिंकेज बन गया है। किसका फॉर्मेशन हो गया है? पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया है। आगे चलते हैं। The reaction between two molecules of similar or different amino acid proceed through the combination of two amino group of one molecule with the carboxylic group to the other. This result is the elimination of water molecule and formation of peptide bond CONH. Proteins can be classified into two types on the basis of molecular shape. Fibrous proteins. When the peptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bond, then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin, myosin, etc. दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स? This structure is result when the chains of peptide coil around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. Insulin and albumin are the common example of a globular proteins. Structure and shape of protein can be studied for different levels: primary, secondary, tertiary और क्वाटरनरी। जो प्रोटीन्स हैं उनकी स्ट्रक्चर की जो स्टडी की जाती है वो 4 फैक्ट में की जाती है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन्स में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच पॉलीपेप्टाइड इन ए प्रोटीन हैज एमिनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट इज सेड टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन्स. Any change in this primary structure, the sequence of amino acids create a different protein. बात करते हैं secondary structure की. The secondary structure of protein refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different type of structure like alpha helix and beta plated sheet structure. These structures are arise due to regular folding of backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between COO or NH group of the peptide bond. Alpha helix is one of the most common way in which polypeptide chain form all possible hydrogen bonds by twisting into a right
and they discrete with the NH group to each amino acid residue. In beta structure, all peptides are excreted out of nearly maximum extension and then laid side by side, which are held together by intramolecular hydrogen bonding. ये ध्यान रख लेना। हम लोग बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The tertiary structure of protein represents overall folding of the polypeptide chain. Further folding of the secondary structure, it gives rise to two major molecular shapes, fibrous and globular. The main force which stabilize two and third structure of protein are hydrogen bonding, disulfide linkage, van der Waals bond and electrostatic force of attraction. और फाइनली हम लोग बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. Subunits with respect to each other is known as quaternary structure. तो देखो ये मैंने बता दिया है, जो प्रोटीन की है वो 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो COOH और NH2 की दोनों ग्रुप, एक एमिनो एसिड का COOH ग्रुप, दूसरे एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप, और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा और ये बन जाएगा आपका पेप्टाइड लिंकेज। देखो क्या लिखा है, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड टू द अल्फा एमिनो एसिड amino group of other amino acid. The bond formed between two amino acid by the elimination of water molecule is called peptide linkage of bond. The peptide bond is simply another name of amide bond. कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वही एमाइड बॉन्ड होता है। एमाइड बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा आगे। The product formed by the linking amino acid molecule through peptide linkage is called a peptide. Peptides are further designed by tertiary, di, tri, tetra, pentapeptide accordingly as they contain 2, 3, 4 or 5 amino acid molecule, same or different, joined together in following fashion. Means पहले 2 एमिनो एसिड जुड़ेंगे, फिर 2 एमिनो एसिड जुड़ने के बाद उनसे तीसरा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा, तीसरा जुड़ने के बाद चौथा जुड़ जाएगा, चौथा जुड़ने के बाद पांचवा, ऐसे ये जुड़ते जाएंगे। और जब हज़ारों लाखों की संख्या में एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ में आ गया, जिसमें हज़ारों पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ये ध्यान रख लेना। एक तरह से पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होगा। समझ में आ गई? आगे चलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन लिंकिंग टुगेदर डिफरेंट एमिनो एसिड इज नॉट ए रैंडम प्रोसेस। ईच मॉलिक्यूल टू गिवन ए प्रोटीन एट द सेम सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स अलोंग ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इन फैक्ट इट इज दिस वेरी सीक्वेंस the impart of protein is often specific properties. Even a change of just one amino acid can drastically change the properties of entire protein molecule. Hemoglobin consists of 574 amino acids, 574 amino acids unit in this molecule in a definite sequence. When only one specific amino acid in the sequence is changed, it becomes a defective hemoglobin which loses its specific properties of carrying oxygen in the bloodstream and result in disease called sickle cell anemia. नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये वाली सीक्वेंस होती है। दोबारा देखते हैं, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है जिसमें एमिनो एसिड्स की ये सीक्वेंस होती है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया वाला है उसमें देखो ये वाला पोर्शन चेंज हो जाता है। ग्लूटेनिन की जगह क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। इसलिए ये एक एमिनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड है, अगर उसमें एक एमिनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स ओवरऑल कंपोजिशन किस किस से मिलके बने हैं।
कार्बन होता है देखो 50 से 53%, हाइड्रोजन होता है 6 से 7%, ऑक्सीजन होता है 23 से 25%, नाइट्रोजन होता है 16 से 17%, सल्फर होता है लगभग 1%। अदर एलिमेंट्स में बी प्रेजेंट एज फास्फोरस, आयोडीन और आयरन एक्सेट्रा। अब हमारा प्रोटीन्स का लास्ट टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्या होता है डीनेचुरेशन? प्रोटीन फाउंड इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3-dimensional structure and biological activity is called a native protein. When a protein in its nature form is subjected physical changes like change in temperature or chemical changes like change in pH, the hydrogen bond are disturbed, and due to this globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. The coagulation of egg white and boiling is common example of denaturation. Another example is curding of milk, which is caused due to formation of lactic acid by the bacteria present in milk. ठीक है, तो ये आपका हो गया है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये आपका प्रोटीन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है, न्यूक्लिक एसिड्स, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।